Yes, brother, please start. Okay. Shall you pray? Almighty God, our gracious, loving Heavenly Father, we thank you, Lord, for the life you have given us. Our times are in your hand. Your preciousness is your presence with us. We thank you, Father, for this blessed day added to our lives. And you are called our Father in heaven. We pray to you through our Master, your dear Son, our Lord Jesus Christ. We praise you and thank you. You are there always ready to incline your ears to hear our prayers. And you are there to look after our affairs much better than anyone else. We look for help, but our help comes from the Lord. Human helps are not that worth. Still, Lord, we know that fellowship of saints is worth spending time with you in prayer as well as meditation of your word and singing your praises and glorious hymns we learned from year after year, days after days. We thank you, Father. You have filled us with your goodness and mercies and given us sufficient strength to get up in this morning to start our day with you. Help us, Lord, as we look to your face. We know we are saved. We are guided. We are purchased for your possession. And world cannot claim us, not even a bit, as Jesus said. Prince of this world is coming. He has nothing to do with me. Dear Lord, we have everything to do with you because you have everything to do with us. Lead us, Lord, with your word. Lead us, Lord, in prayer, praying in the Spirit and understanding with few words of wonderful praise and worship of you, Lord. And our petitions are always there, which is known to you before we ask. We thank you, Father. Such a God we have, everlasting Father, who has an everlasting love for us. We bless you, Lord, as our fellowship together around thy word in thy presence. Let all those who are gathered be blessed and others be brought together faster than any. We thank you that you are going to make our belief and our coming together, our sitting in your presence and kneeling in your presence, all be worth the day as well as our lifetime, Lord. We thank you, Father. We praise you and thank you. We have so many things to pray for. You will guide us, Lord, to pray right things and receive your blessings, that we may be a blessing to others. In Jesus' precious name we pray. Amen. Amen. सॉन्ग आएंगे हिंदी में 151 and तेलुगु में 64, तेलुगु में 84. In Hindi 151 and Telugu 84. प्रभु यीशु तेरे पावन नाम की प्रशंसा स्तुति हो सर्वदा। प्रभु यीशु तेरे पावन नाम की प्रशंसा स्तुति हो सर्वदा। स्वर्ग और पृथ्वी पर ऊंचा तेरा नाम, प्रभावशाली है तेरा नाम। स्वर्ग और पृथ्वी पर ऊंचा तेरा नाम, प्रभावशाली है तेरा नाम। संतों के प्रशंसा योग्य है यह नाम, संतों की प्रशंसा योग्य है यह नाम। प्रभु यीशु तेरे पावन नाम की प्रशंसा स्तुति हो सर्वदा। प्रभु यीशु तेरे पावन नाम की प्रशंसा स्तुति हो सर्वदा।
जीवन हुआ है तेरा नाम, शैतान और पाताल को हराया याना, जीवन हुआ है तेरा नाम, हमें विजयी बनाया है ये नाम, हमें विजयी बनाया है ये नाम। प्रभु यीशु तेरे पावन नाम की प्रशंसा स्तुति हो सर्वदा। प्रभु यीशु तेरे पावन नाम की प्रशंसा स्तुति हो सर्वदा। पापियों की सब पाप मिटाने दुनिया में आया है प्यारा नाम, पापियों की सब पाप मिटाने दुनिया में आया है प्यारा नाम, हमें स्वर्ग में ले जाता है ये नाम, हमें स्वर्ग में ले जाता है ये नाम। प्रभु यीशु तेरे पावन नाम की प्रशंसा स्तुति हो सर्वदा। प्रभु यीशु तेरे पावन नाम की प्रशंसा स्तुति हो सर्वदा। उत्तम संतगण प्रशंसा करते हैं, ऊंचे स्वर में स्वर का है यह नाम। उत्तम संतगण प्रशंसा करते हैं, ऊंचे परमेश्वर का है यह नाम। सारी दुनिया में सबसे महान यह नाम, सारी दुनिया में सबसे महान यह नाम। प्रभु यीशु तेरे पावन नाम की प्रशंसा स्तुति हो सर्वदा। प्रभु यीशु तेरे पावन नाम की प्रशंसा स्तुति हो सर्वदा। दुख विपत्ति और परीक्षा के समय सदा संभालेगा यह सच्चा नाम। दुख विपत्ति और परीक्षा के समय सदा संभालेगा यह सच्चा नाम। सारी समाओं में हटाता है यह नाम, सारी रुकावटें हटाता है यह नाम। प्रभु यीशु तेरे पावन नाम की प्रशंसा स्तुति हो सर्वदा। प्रभु यीशु तेरे पावन नाम की प्रशंसा स्तुति हो सर्वदा। Brother Silas. थैंक्स ब्रदर। आइए आज हम उपवास की प्रार्थना में जाने से पहले प्रभु के वचन के भाग से पढ़ते हैं। वचन संहिता का 104 और उसका 4 और 5 वचन। भजन संहिता 106 का 4 और 5 पद मैं पढ़ता हूं हिंदी में। हे यहोवा, अपनी प्रजा पर की प्रसन्नता के अनुसार मुझे स्मरण कर, मेरे उद्धार के लिए मेरी सुधि ले, कि मैं तेरे चुने हुए का कल्याण देखूं और तेरी प्रजा के आनंद में आनंदित हो जाऊं और तेरे निज भाग से संग बढ़ाई करने पाऊं। आइए प्रभु की ओर ताकते हैं अगुवाई के लिए। हमारे प्रेमी अनुग्रहकारी प्यारे पिता परमेश्वर, इस सुबह के समय आपके पवित्र जनों के साथ प्रभु जी इस उपवास प्रार्थना में आपने मुझे भी शामिल करने के लिए जो बड़ी प्रिविलेज दिया है प्रभु जी, उसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ। आपने आप हम सबों को उस जीवित रेखा में रखा और प्रभु जी आपकी उपस्थिति में आने के लिए और हमारी बिछवाई प्रार्थना और प्रभु जी आपके सामने हमारी जितने भी पीड़ाएं हैं वो रखने के लिए
और प्रभु जी हमारे कलीसिया के लिए और भारत देश के लिए और जितने संतगण हैं उन सभी के लिए प्रार्थना करने के लिए जो हमें एक बड़ी चुनौती दी है, उसके लिए भी हम आपको धन्यवाद चढ़ाते हैं। क्योंकि प्रभु ये आपको भाया कि हम इस देश में हम पैदा हुए हैं, और प्रभु जी आपने हमें उद्धार दिया ताकि हमको आपने एक प्रकाश की तरह रखा है, ताकि प्रभु हमारे जीवन से कई और लोग आपकी ओर आकर्षित हो। और प्रभु जी वो उनके बीच में हमें आप साक्षी बना के रखा है। प्रभु जी हमें अपने जीवन को परखें कि हम उस तरह की साक्षी के नाई जी रहे हैं, ताकि हम प्रभु आपकी ओर प्रजा को लेके आ रहे हैं, या प्रभु जी आपको हम परीक्षा देने वालों में है। इन सभी को चीजों को हमको देखते हुए हमारे प्रभु जी सुधि लेने के लिए, और प्रभु जी हम भी उसी तरह से जैसे दाऊद उत्साहित हुआ अपने प्रार्थना में, और जैसे अपने पाप को उसने कबूल किया, और प्रभु जी उसी तरह से हम भी आपकी स्तुति, आपकी प्रार्थना, और प्रभु जी हमारे पापों को मानने के लिए और आपकी बड़ाई करने के लिए हमें सिखाए, हमें अगुवाई दे। छोटी सी विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम पे मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। Amen. ये भजन संहिता 106 बहुत ही एक दुख वाली, यानी तो इसके अंदर एक बहुत सारे ऐसे अंधेरेपन को हम देख सकते हैं अगर इसको हम उस 105 के प्रकाश में देखते हैं। तो भजन संहिता 105 प्रभु के महान कार्यों के बारे में, जैसे उन्होंने छुटकारा दिलाया था मिस्र के देश से, जैसे उन्होंने उस जो वाचा का जो स्थान, जो कानान देश में उनको प्रवेश करवाया, और जो बड़े बड़े कामों को, आश्चर्य कामों को किया था, वो सभी बातों को हम 105 में देखते हैं। लेकिन तुरंत ही जब हम 106 में आते हैं तो 1 से 5 वचन में दाऊद, 101 और 2 वचन में दाऊद परमेश्वर की प्रशंसा करता है, उनका प्रेस करता है कि आपके काम बड़े महान हैं, और प्रभु जी आपके काम पराक्रम के हैं, वो हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। आपकी स्तुति करें और धन्यवाद करें, क्योंकि आप भले हो और और आपका करना हमारे पर सदा रहा है। और वो उनके गुणवादों के बारे में कहते हुए, जब वो ये चीज को कहता है कि क्या ही वो लोग धन्य है जो उस न्याय पर चले और समय धर्म के काम करते रहे। मतलब ये उन धर्मी लोगों के बारे में प्रार्थना, मतलब उनको बड़ाई करते हुए और उनके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए कहता है कि आपने धर्मी लोगों को रखा है, वो न्याय पर चलते हैं और वो धर्म के काम करते रहते हैं। लेकिन उसके बाद हम जब देखते हैं, जैसा भी हमने पढ़ा है 4 और 5 वचन में, तो फिर यहाँ पे अपने वो कबूलियत की बात में, प्रार्थना में वो आता है। देखिए हम भी इसी तरह से अपने जीवन में जब प्रभु की प्रशंसा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हमारे जीवन को भी हम परखना चाहिए, क्योंकि ये कहता है कि हे यहोवा अपनी प्रजा की प्रसन्नता के अनुसार मुझे स्मरण कर। कहता है कि रिमेंबर मी ओ लॉर्ड, स्मरण करने वाली बात, और मेरे उद्धार के लिए मेरी सुधि ले। 2 चीजों के लिए वो बात कर रहा है कि विजिट मी फॉर माई सैल्वेशन और रिमेंबर मी। तो ये अगर हम देखते हैं कितना वो परमेश्वर के पास है, निकट है, और किस तरह से वो अपने यथा को परमेश्वर को कह रहा है, जैसा कि कोई एक आदमी बहुत ही क्या बोलते हैं गंभीर अवस्था में है, यानी तो वो बहुत ही अनारोग्य के साथ है, या मतलब ही सिक, और वो हिल नहीं पाएगा, और वो डॉक्टर को कह रहा है कि भाई मेरे पास आ जा, मैं घर से निकल ना पाऊंगा, मेरी बहुत बुरी हालत है, मेरे सहायता के लिए आ जा। तो ये अपने परमेश्वर को कह रहा है, द ग्रेट फिजिशियन, जो परम वैद्य है, उनसे प्रार्थना करके बोल रहा है कि प्रभु मुझे आप आके मुझे स्मरण कर, रिमेंबर मी, और जब आएगा तो मेरी धार लेके आना। तो हम भी अपने इस जीवन में अपना अवस्था को हम जानते हुए हमारे परम वैद्य के पास जाते हुए कहना कि प्रभु मेरे ये पाप है, मैं इस कारण में आ नहीं पा रहा हूँ, मुझे क्षमा कर, हमें क्षमा कर, और प्रभु जी हमारे उद्धार के लिए तू आ जा। ये बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि दाऊद ये समझ गया कि उस परमेश्वर, उस स्वर्गीय द्वार जो है वो खुला है, ताकि हम अपने हियाव के साथ प्रार्थना कर सकें। जैसे थोड़ी देर पहले भाई सिविजॉन ने फोन पर प्रार्थना किया था कि हमारे पास वो उपाय है कि हम जब चाहे प्रार्थना करें, हमारी प्रार्थना सुनने वाला हमारा परमेश्वर है, और हम और भी धन्य हैं, क्योंकि हमारा जो
मसीह है, जो हमारा उद्धार करता है, उन्होंने हमारे लिए अपने प्राण देते हुए वो स्वर्ग के द्वार खोला ताकि हम अपने बिछवाई वो बड़ी ही आपके साथ, जैसे फिब्रानी की 4:12 में देखते हैं कि हम जाके हम प्रार्थना कर सकते हैं। तो किसके लिए कर रहा है? 3 चीजों के लिए वो प्रार्थना मतलब वो मांग रहा है, 3 चीज मांग रहा है। क्या मांग रहा है? कि सबसे पहले मैं उनकी कल्याण देखूं, किनकी? जो देश है, उन वो देश इज़राइली प्रजा, आज हम उस इज़राइली प्रजा के कॉमनवेल्थ में हमें भी मिलाया गया है, तो वो अपने प्रजा के कल्याण देखें। हमारी प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए, जैसे हम भारत देश में जितने हमारे संतगण हैं। दूसरी बोलता है उनके उनको देख के मैं भी आनंद में आनंदित हो जाऊं, वो प्रजा को देखते, उनकी भलाइयों को देखते, उनके ऊपर जो आशीष दिया गया है, उन भलाइयों को देखते मैं भी आनंदित हूं। और तीसरी कहता है तो निज भाग के संग बड़ाई करने पाऊं। जो निज भाग मतलब जो पवित्र प्रभु से जो मोले गए हम सभी को, जब हम स्तुति करते हैं, बड़ाई करते हैं परमेश्वर में, उन स्तुति करने वाले, प्रशंसा करने वाले लोगों के साथ मैं भी खुश हूं। ऐसे इस तरह से हम यहाँ पे पढ़ना चाहिए, जैसा दाऊद ने उस समय इजरायली प्रजाओं के बारे के उस 3 चीजों के बारे में प्रार्थना की। ये 3 शीर्षक हम सीखते हैं कि हम कैसे अपने प्रार्थना में हम प्रभु के सामने रखना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर एक कन्फेशन मतलब अपने उस पाप की कबूलियत कर रहा है, सिर्फ दाऊद नहीं, पूरी देश। सो इट्स ए कन्फेशन ऑफ ए नेशन, एक सारी देश, इजराइल देश की इजराइल प्रजा, या आज हम अपनी सब समय में देखते हैं कि हम सभी के बीच में इस कबूलियत के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। कैसे कबूलियत कर रहा है? कि हमने अपने पुरखों के समान पाप किया है, हमने कुटिलता में अपनी हमने दुष्टता की है। 7 वचन बोलता है मिस्र के हमारे पुरखों ने तेरे आश्चर्य कामों को मन नहीं लगाया, ना तेरी अपार करना का स्मरण रखा। उन्हें समुद्र के किनारे अर्थात लाल समुद्र के किनारे पर बलवा किया। ये सबसे पहले पाप जो है, इज़राइल जैसे मिस्र देश में 10 उतने बड़े आश्चर्य कामों को और बहुत ही बड़े बड़े कामों को देखने के बाद आते ही तुरंत ही वो लाल समुद्र के बाद जैसे उन लोग पूरे तरह से घेरे गए थे, पीछे से मिस्र की सेना और आगे समुद्र, तो वो कुड़कुड़ाने लगे कि आपने हमें लेके आके, ये सब जानते हैं हम लोग, जैसा कुड़कुड़ाने लगे। ये सब वही बोल रहा है, वो ये स्मरण कर रहा है कि आज के आश्चर्य कामों को भूल गए और आपके करना को स्मरण नहीं करा। ये दे फॉरगॉट द वर्क्स ऑफ द लॉर्ड, और उन्हें समुद्र किनारे परमेश्वर को परीक्षा के बलवा किया। लेकिन करुणामय परमेश्वर आदमी का निज स्थिति को जानता है। वो अपने नाम के निमित्त, फॉर हिज नेम से उन्होंने क्या किया है, वो हम 8, 9, 10 में वचन में देखते हैं कि पूरी शत्रु सेना को उस समुद्र के अंदर उनको तितर बितर करते हुए उसे एक भी आदमी ना बचे, सब लोग मर गए। परंतु उस समुद्र को 2 पायल करते हुए बीच में सूखा रास्ता देते हुए इजराइल के प्रजा, अगर आप 25 या 30 लाख लेते हैं, 6 लाख बोलते हैं तो आदमी सब जानते हैं, तो 25-30 लाख लोगों को पूरी रास्ता निकलने तक समुद्र वैसे ही खड़ा रहा। उसके बाद जैसे मिस्र देश के जो सेना है पूरी उसके पीछे आई, तो उन सबको वहां पे खत्म कर दिया। उन्होंने बेरी के हाथ से उबारा और शत्रु के हाथ छुड़ा लिया। ये सबसे बड़ा आश्चर्य काम हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले जैसे मिस्र से निकले उन्होंने पाप करना शुरू कर दिया है। अगर ये गिनती का 14 अध्याय में अगर आप स्मरण करते हैं, 22वें वचन में बहुत ही स्पष्ट रूप से कहता है, परमेश्वर भी उनके ऊपर तंग हो जाता है। बोलता है इन सब लोगों के जिन्होंने मेरी महिमा मिस्र देश में और जंगल में देखी, और मेरे किए हुए आश्चर्य कामों को देखने पर भी 10 बार मेरी परीक्षा, मेरी बातों को नहीं माना। 10 बार उन्होंने परीक्षा की। अगर ये आप ध्यान से पढ़ेंगे इस अध्याय को 106 में, वो 10 चीज हमको दिखते हैं। आज हम समय नहीं है मतलब देखने के लिए, लेकिन संक्षिप्त में प्रभु को कैसे उन्होंने सताया है, कैसे उनको परीक्षा करते गए, इसके ऊपर हम देख सकते हैं। देखिए, कोई ऐसी उद्धार हमें नहीं मिल सकता है जब तक परमेश्वर हमें देता है। जब तक वो हमने परमेश्वर को नहीं ढूंढा, परमेश्वर ने खुद हमें ढूंढा है, यही उद्धार का काम हमारे जीवन में हुआ है। अगर ना होते तो हम भी सत्यानाश के गड्ढे में चले आते हैं। तो ये हम बहुत ही आभार प्रजा होना चाहिए हमारे हृदय में, हमेशा उस प्रफुल्लित होते हुए, और जितना हम परमेश्वर के निकट जाते रहते हैं उतनी हमारे ताड़ना, उतनी हमारी स्तुति और उतनी हमारे मन के अंदर वो आभास को मानना चाहिए कि हम अपने पाप के उस अवस्था में रहते हुए प्रभु को देखते हैं। तो फिर हम अपना आप को और भी
क्या बोलते हैं, परिपूर्णता की ओर दौड़ने के लिए, परिपूर्णता के और बढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ पे जब वो कबूल करना शुरू किया है, उसके बाद क्या करता है, वो पिछले और आगे के प्रस्तुतकारों को भी देखता है। अब ये परमेश्वर का जो करुणा है वो हम देखें कि कैसे उन्होंने उस समुद्र के पास पहली बार हम उद्धार को देखते हैं। अब उनके पाप के द्वारा दूसरी बार क्या करते हैं, दे गिव लीननेस टू देयर सोल्स पढ़ के हम पढ़ते हैं, उनके यहाँ हृदय में सूखापन दिया है। अब ये वचन को हम 13 वचन देखिए, 13-14 में देखते हैं। अब 13-14-15 में क्या बोलते हैं, सबसे पहले, परंतु वे झट उसके कामों को भूल गए, जैसे लाल समुद्र से उनको छुटकारा मिला, तुरंत जैसे हम हैं, जैसे अच्छी काम हमारे जीवन में हुआ तुरंत भूल जाते हैं, फिर कुड़कुड़ाना शुरू कर देते हैं कि ये कैसे क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। यहाँ पे भी वो बोलते हैं तुरंत ही, परंतु ये हट के उसके कामों को भूल गए और उसकी युक्ति के लिए ना ठहरे। हम भी परमेश्वर की युक्ति के लिए, वी डू नॉट वेट फॉर हिज काउंसिल, अपनी मनमानी, अपने मन में जो आया हम आगे बढ़ जाते हैं, जब फंस जाते हैं, प्रभु मुझे मदद कर। ये काम हमारे जीवन में हमेशा से होता आया है। तो यहाँ पे ये बात को हम स्मरण करें कि तुरंत हम भी भूल जाते हैं और युक्ति को ना ठहरें। दूसरी बात कहता है, जंगल में वो अति लालसा और निर्जल स्थान में परमेश्वर की परीक्षा की। ये भी हम जानते हैं कि वहां पे जैसे पानी नहीं था उस जंगल की अवस्था में, वहां पर परमेश्वर को वापस उन्होंने परीक्षा की। और क्या कहते हैं, तब उसने उनके मुंह मांगी, वो वर तो दे दिया परंतु उनके प्राण सुखा दिया। यहाँ पे कैसे इन लोग लालसा दिखाया, कहते हैं कि वहां पे हमको मच्छी मिलता था, वहां पे हमको तरबूज मिलते थे, वहां पे हमको वो हरी क्या बोलते हैं, जो भी कोतमीर करे पाक जो भी मिलता है हमको खाने के लिए, मतलब उन चीजों के ऊपर शरीर की लालसा, तब की उनको वहां से परमेश्वर का जो मन्ना है वो उन्हें वहां पे मिला करता था। लेकिन देखिए, परमेश्वर ने जैसे उनकी लालसा, ही सेंट क्वेल्स, परमेश्वर ने उस आकाश से उनके लिए उस खाना, तो मतलब ये मांस को तो दे दिया खाने के लिए। जैसे ही वो बैठ के खाने शुरू कर दिए, उनके बीच में क्या हुआ, कई लोग मर गए। तो ही ब्रॉट लीननेस टू देयर सोल। इसका मतलब ये है, अगर इसको हम लोग दृष्टांत में अगर देखते हैं, दो चीजों को हम देख सकते हैं। एक तो सबसे पहले काउंसिल, मतलब परमेश्वर युक्ति को नहीं माना, और दूसरा अपने हृदय के अनुसार, जैसे वो लालचपन या उस लालसा के साथ हम आगे बढ़े हैं। तो अगर बड़े एग्जाम्पल्स को लेना चाहते हैं, एक हम लूत की जिंदगी को देख सकते हैं, और दूसरा भगोड़ा पुत्र के बारे में। परमेश्वर के उपस्थिति से दूर हो जाना, अपने मन मानवी करना, उसका हम लोग देखते हैं कि क्या उसका रिवॉर्ड उनको मिला है। रीननेस ऑफ अ सोल, मतलब सूखेपन, हृदय का सूखेपन को अगर हम देखते हैं, प्राणों के सूखेपन को देखते हैं, इसका बहुत ही स्पष्ट तरीके से हमको समझना अपने जीवन में। हम भले भांति रह सकते हैं, पैसे हो सकता है, हमारे शरीर में ताकत हो सकती है, या नहीं तो फिर हम पूरी तरह से बहुत ही आशीष पाए जाते हैं, लेकिन हमारे में उस प्राण की सूखापन कैसी दिखाई पड़ती है। सबसे पहले बात, हम वी डू नॉट लव गॉड, प्रभु के उनकी ओर हमारी कोई प्रेम नहीं है, प्रीत नहीं है। दूसरा, धन्यवाद का जीवन ही नहीं होता, वी आर नेवर थैंकफुल टू गॉड। तीसरा क्या है, परमेश्वर के वचन के बारे में, परमेश्वर के घर के बारे में या परमेश्वर के लोगों के बारे में हमें किसी तरह की प्रीति नहीं है, देयर इज नो एपेटाइट। और चौथी क्या है, हम अपने जीवन में अपने ही कामों के अंदर हम अपने वी फीस्ट आवर बॉडीज, वी फीस्ट आवर लाइफ, वी फीस्ट आवर फैमिलीज, हमारे घर में ही सब चीजों को हम बढ़ोतरी देखना चाहते हैं, लेकिन हमारे प्राण में क्या हो रहा है, सुखापन। देयर इज नो रियल लाइफ इफ क्राइस्ट व्हिच इज विजिबल इन अस। सो सेल्फिश, मतलब एक खुदगर्ज की जिंदगी में जीते हुए परमेश्वर को त्यागने वाले तुरंत ही उनको भूलने वालों में आ जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं, ये चीज को हम अपने जीवन को परखें कि हमारा जीवन कैसी है, क्या हमारे जीवन में आर वी आल्सो लिविंग इन द लीननेस ऑफ सोल, हम भी उस सूखेपन में, प्राण की सूखेपन में जी रहे हैं क्या। और उसके बाद आप अगर देखते जाएंगे वचन 16 और 18 में, अब्राहम और दातान में सेल्फ राइचियसनेस, फिर उसके बाद भगवती। सबसे पहले बोले कि आप ही यहाँ पे वो अगुवाई है क्या, और कोई नहीं है क्या। वो कोरा उसके साथ मिलते हैं, और यहाँ पे उनको दिस इज सेल्फ राइचियसनेस एंड एनवी, ये हम लोग तीसरी देखते हैं। चौथा, वो परमेश्वर उनके खिलाफ खड़ा हो गया 19 और 23 के ऊपर। 5 मिनट में क्लोज करता हूँ, समय नहीं है, लेकिन ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि कहाँ पर हमारे जीवन को परखना है। क्या करते हैं, वो परमेश्वर के रूप को उस बैल की नाई बदल दिया। जब मूसा
होरेब के पर्वत में 40 दिन 40 रात परमेश्वर के साथ था, और वो पूरी बड़ी प्रणाली कैसे टैबरनेकल बनाना चाहिए और 10 कमांडमेंट्स यहाँ पे क्या क्या, आरोन के साथ उन्होंने क्या क्या, एक बछड़ा बनाया, 2 गोल्डन काफ, और पे वर्शिप करना शुरू कर दिए हैं। वहाँ पे अपनी पाप के जितने भी चीज है उसके अंदर, क्योंकि मिश्रित जन के साथ आए थे, वहां पर उन्होंने भगवती किया। और वहां पर भी देखते हैं कि वहां पे परमेश्वर उनके ऊपर जब अपनी क्रोध दिखाया, मूसा उनके बीच में आके, वो दरार के बीच में उस जोखम वाली जगह पर आके खड़ा हो जाता है। अगर वो खड़ा ना होता तो जल जा, वो क्या होता, उन लोग भस्म हो जाते। उसी तरह से हमारे जीवन में परमेश्वर अपने इकलौता पुत्र को उस दरार में खड़े हुए देखते हुए हमारे पाप को उस नापाक मेमने के ऊपर क्या किया, उसने वध दे के उसको वध करते हुए उस लहू से हमें मोल लिया और हमारे निज प्रजा बनाया। और जब भी हमारे पाप हमारा दिखाई पड़ते हैं तो वो मसीह उस दरार में खड़े हो जाता है कि ये मेरे लहू से मोले गए मेरे बच्चे हैं, इनको स्मरण करके। उसके बाद आगे वचन में हम देखते हैं 28 और 30 में, पोर का जो बाल है उसके साथ उन्होंने क्या किया है, अपने बच्चों को बलि दे दी। इसका अगर आप बहुत आराम से अगर समझना है, आज हम जब परमेश्वर के उस जीवन में नहीं रहते हैं, हमारे बच्चे क्या करते हैं, वो इधर उधर बिछड़ जाते हैं और अन्य जनों के साथ मिलना, उनके साथ शादी होना, ये सब चीजों का देखते हैं, तो ये एक बहुत ही बड़ी दुष्टावस्था में या बहुत ही प्रॉब्लमैटिक लाइफ में आ जाते हैं। अगर हम बचपन से ही, जैसे हम यहोशू को देखते हैं कि वो ही वाज इन द टैबरनेकल, परमेश्वर के घर में वो था, बच्चे भी उसी तरह से आते हैं, तो हम भी उन्हीं को इस तरह से सिखाते हैं। ये नहीं कह रहा हूँ कि जो हो रहा है वो हम अपने आप से कर रहे हैं। शत्रु शैतान हमारे जीवन में उस व्याकुलता लाने के लिए कोशिश करता रहता है, लेकिन हम जब परमेश्वर के अधीनता में रहते हैं तो हमारे जीवन में भी उस तरह से वो क्या करता है, अच्छे कामों को करने के लिए वो हमें प्रोत्साहित करता है। लेकिन हम हर चीज में प्रभु में विश्वास में बने रहने के लिए हमको देखना है। उसके बाद जो अगर बाद में देखते हैं 8वां वचन देखते हैं, 8वां चीज को देखते हैं तो क्या किया, दे पोल्यूटेड द लैंड, उन्होंने मिस्र जनों के साथ मिला, उनको सत्यानाश करने के लिए 24 से 34 से 29 तक 39 तक देखते हैं, तो उनको पूरी तरह से सत्यानाश करने के लिए बोला। ऑल द 7 कैनानाइट नेशंस को उन्होंने क्या किया, तुम जाके बर्बाद करो, उनको पूरा सत्यानाश करो और जाके तुम उसको लो, लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया। उसके कारण क्या हुआ, मिश्रित जनों के साथ मॉडरेशन सब चलता है। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में? कौन कहता है गाना नहीं देख सकते? कौन कहता है क्रिकेट नहीं देख सकते? कौन कह सकता मैं इनके साथ नहीं बैठ सकता? कौन सा कहता है कि मैं लोगों के साथ उनकी तरह से क्यों नहीं रहूं? मैं अगर वैसा हूं तो मैं उनके साथ रहूंगा, तो मैं परमेश्वर के घर में उनको लेके आऊंगा। तो ये एक मॉडरेशन आ जाता है। हम उनको नहीं ले पाते हैं क्योंकि हमें उतनी बल नहीं है, लेकिन हम उनके कारण को उनकी तरह बनना शुरू हो जाते हैं। सो दैट्स अ मिक्सचर ऑफ आवर कल्चर विद देयर्स। तो इसमें हम क्या करते हैं, पाप में पड़ जाते हैं। तो हम जो परमेश्वर हमें कहा गया है, जो हमें वो काउंसिल दिया है, उसको हम पूरी तरह से निभाएं, अधीनता में रहें और परमेश्वर की अगुवाएं। तो उसके बाद क्या करते हैं, वो हमें उस शत्रु शैतान से बचाएगा, हमें आगे बढ़ाएगा और फिर हमें क्या करेगा, उद्धार देते हुए आगे ले चलेगा। और समय नहीं है, लेकिन अंत में जब हम उसका 45 से और 48 तक जब देखते हैं, तो अपने वचा को स्मरण करके अपने अपार करना के अनुसार, मतलब द कॉवेनेंट ऑफ द पीपल, जो वाचा अपने प्रजा को दिया है, उस वाचा को स्मरण करते हुए, इतने धिक्कार करने के बावजूद भी उस वाचा को स्मरण करते हुए परमेश्वर क्या कर रहा है, अपने नाम के खातिर वो क्या रहा है, उन सभी बंदों के लिए उनको क्या कर रहा है, उनको उद्धार दे रहा है, उनको छुड़ाया रहा है, उनके ऊपर दया कर रहा है। और 47-48 वचन में फिर वापस वो स्तुति करता है, हे परमेश्वर यहोवा, हमारा उद्धार कर और हमें अन्य जातियों में इकट्ठा कर ले कि हम तेरे पवित्र नाम का धन्यवाद करें और तेरी स्तुति करते हुए विषय में बड़ाई करें। इस्राएल के परमेश्वर यहोवा अनादिकाल तक के अनंत काल तक धन्य है, और सारी प्रजा कहे आमीन, यहोवा का स्तुति करो। पहला वचन का पहला भाग और आखिरी वचन का आखिरी भाग में, दोनों में भी वो क्या कर रहा है, यहोवा की स्तुति करो, हालेलुया। तो इस तरह का परमेश्वर जो पहले वचन और आखिरी वचन के बीच में जितने आश्चर्य काम हमारे बारे में किया है, हमारे गिरने के बावजूद, परीक्षा देने के बावजूद, पाप करने के बावजूद, उस प्रभु के सामने अपने जीवन को परीक्षा लेते हुए और अपने पाप को मानते हुए
प्रभु की उस उदारता और उस धन्यता हमारे जीवन में देखते हुए हमें आगे बढ़ाए और प्रभु में हमें हियाव दे। ये दिए वचन भाग को परमेश्वर आशीष करे। ओवर टू यू ब्रदर। Amen.